Yes, exercise 4.3. 4.2 is not in our syllabus. The 4.3 exercise is related to your area of a triangle using the method of determinant. Means find the area of the triangles whose vertices are A, B and C. A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 is given by area of a triangle ABC. Delta is equal to 1 by 2 x1 y1 1 हम अपनी मर्जी से लगाते हैं बिकॉज टू मेक देम द स्क्वायर मैट्रिक्स. x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ ए हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट ऑफ बी हैं, x3 y3 कोऑर्डिनेट ऑफ 1 है. ए बी सी हम इसी ऑर्डर में लिख देते हैं. हमने 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कॉलम C1. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव मीन्स y1 माइनस y3 बट आई हैव रिटन y3 माइनस y1. तो आपको ये क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट लर्न करना है और उसी को 3/3 आपको सॉल्व करना है. कुछ 3 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं रिमार्क्स में कि सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी we will take absolute value of the determinant 1. Absolute value mean we will take only the positive values. Absolute values means we will take only the positive value of this determinant because area एक positive quantity है. Number 2, since area is given, use both positive and negative value of the determinant for calculations. हमारे पास NCERT में से 4 क्वेश्चंस हैं. Area of a triangle formed by 3 points is 0. Means if the points are collinear then area of the triangle is 0. If you remember these 3 or 4 points, it means the questions related to the area, every concept is clear. And for calculation it has only a determinant of order 3/3. Now let us take exercise 4.3. Question number 1 has 3 parts. कि find the area of the triangle at a point given by A is given to be 2, 7, B is 1, 1 and C is 10, 8. Area of a triangle delta is 1 by 2, 2, 7, 1, 1, 1 and 1, 10, 8 and 1. Now what is the area of a triangles? Expand along, लिख देना चाहिए expand along R1. 2 into 1 minus 8 minus 7 into 1 minus 10 plus 1 into 8 minus 10. This is 1 by 2 minus 14 plus 63 minus 2, that is 37 by 2. बिकॉज 16 माइनस करेंगे. स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं बिकॉज एरिया यहाँ पे आपका पहले ही यूनिट्स में आता है. रिमेनिंग पार्ट्स इसके आप खुद कर लेंगे. सेकंड क्वेश्चंस शो दैट द पॉइंट्स A कॉमा B प्लस C, B कॉमा आर कोलिनियर. अब लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल
जीरो निकालना है। 1/2 ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1। एक्सपेंड अलॉन्ग C1 कर लें, C3 कर देते हैं इसमें। एक्सपेंड अलॉन्ग C3, पहला पॉजिटिव 1 आएगा, दिस एंड दिस डिलीटेड, b इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, फिर माइनस साइन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, प्लस 1 इंटू थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, a इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी। 1/2 बाहर है सारे में। ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी सी। एक एक टर्म को ऑब्जर्व करते रहिए। दिस ए बी कैंसल विद दिस बी स्क्वेयर कैंसल विद दिस सी स्क्वेयर कैंसल विद this AC cancelled with this term cancelled with this, and this BC cancelled with this BC. This is 0, this implies points are collinear. Next, third and fifth questions are one and the same. Find the value of K when the area is given. Area of triangle is plus minus 4. Point number 2 use होगा. If area is given, both positive and negative value of the determinant for calculations. Area का फार्मूला 1/2. I am taking third question first part. Point is K 0 and 1, 4 0 and 1, 0 2 and 1 is plus minus 4. Expand along C2 because maximum number of zeros हैं, तो this is 1/2. 0 0 लेने की जरूरत नहीं है. This will be minus plus and minus. This is -2. Deleting the third row and second column, K minus 4 is equal to plus minus 4. K minus 4 is equal to minus plus 4. K is equal to minus plus 4 plus 4. This implies K is equal to 0 or 8. अगर आप सेकंड पॉइंट यूज नहीं करेंगे तो एक आंसर आएगा. स्टूडेंट्स की नॉर्मली प्रॉब्लम्स यही रहेंगी कि सर आंसर्स प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज के साथ जो मैं थ्योरीज देता हूँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रख लें तो आपके सम्स एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होंगे. और इसकी हेल्प से आपका क्वेश्चन नंबर
3 के रिमेनिंग पार्ट एंड 5th भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब एक कोऑर्डिनेट्स आपको 1, 2 और 3, 6 दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इट मीन जो सी पॉइंट एक्स वाई है वो भी लाइन के ऊपर ही लेना होगा। तो दिस मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर्स, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 0, 1/2, ए के कोऑर्डिनेट 1, 2 and 1, बी के कोऑर्डिनेट 3, 6 and 1 और सी के कोऑर्डिनेट x, y and 1, 0। आई एक्सपेंड इट अलॉन्ग R1, तो 1/2 उधर जाके 0 चला गया, 1 के साथ 6 minus y minus 2, 3 minus x and calculate तो 2x minus y. So this is the condition that the points are collinears. So this is all about your exercise 4.3. इसमें आपने रिमार्क्स को ध्यान से पढ़ना है कि एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड एरिया इज गिवन, पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, यही इसके मेन पॉइंट्स हैं। कंसर्न्ड एग्जाम्पल्स आप कवर कर लेना। इसमें बेसिकली कैलकुलेशंस के नाम में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ही हैं बाय द मेथड ऑफ 3/3 इवैल्यूएशन की डिटर्मिनेंट्स ही आपके पास है।